Hello students, welcome to our channel. Today we are going to study about nutrition in a plant. Plants are incredible organisms that uses sunlight, air, water and soil nutrient to create their own food. You know it that our nutrition that we have a two type, right? One is heterotrophic, other is ऑटोट्रॉफिक. हमने ये पढ़ा था कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो होता है जिसमें ग्रीन प्लांट अपना खाना अपने आप बनाते हैं, राइट. सो टुडे आवर टॉपिक इज दैट हाउ दे मेड इट. वो जो खाना बनता है वो किस प्रोसेस से बनता है, उस प्रोसेस का नाम क्या होता है, राइट. सो लाइक अदर ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स दे आल्सो नीड एनर्जी. उनको भी खाने की जरूरत होती है, उनको भी नरिशमेंट की जरूरत होती है ताकि वो अपनी रिक्वायरमेंट को, अपनी एनर्जी को फुलफिल कर सके, राइट. अपनी एक्टिविटीज कर सके, ग्रोथ कर सके. So green plants, they are autotrophic in the sense that they synthesize their food. अपना खाना बनाते हैं किससे? By process. So let's continue here. Like animal, plant also need energy. They also need food for the growth and energy. Green plants synthesize their food by the process of, कौन सा process होता है? Photosynthesis. Photo means light. Synthesis means putting together. Synthesizes of food with the help of light. It is called photosynthesis. Synthesis means produce. Produce करना किसी चीज को, right? So here, what do you mean by photosynthesis? We simply say, क्या कहते हैं, हमने बहुत छोटे जब हम थे तो उसमें हमने ये पढ़ा था कि फोटोसिंथेसिस का बहुत बड़ा डेफिनेशन आ चुकी है. आज कुछ अलग लेवल पे इसको पढ़ेंगे कि क्या है फोटोसिंथेसिस. सो देयर वी स्टडीड, हमने क्या पढ़ा था? इट्स अ कन्वर्जन. किस चीज का कन्वर्जन होता है? लाइट एनर्जी का. लाइट एनर्जी कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी, राइट. It's a conversion of light energy into chemical energy, right, which is in the form of carbohydrate. And how it happened? ये light energy chemical energy में कैसे convert होती है? With the help of green plants. ये हमेशा photosynthesis का जो process होगा, it occurs in green plant. So here we studied these green plants in the presence of sunlight convert this CO2. CO2, it's a inorganic substance. inorganic substance किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ऑर्गेनिक में. यू नो इट. CO2 जो हमारा होता है दैट इज इनऑर्गेनिक. और हमारे रूट के अंदर से वाटर, राइट. जो वाटर होगा, सॉइल जो होगी वो क्या करेगी? वाटर देगी. वो मिट्टी से वाटर और जो एटमॉस्फेयर होता है वहां से कार्बन डाइऑक्साइड लेती है और मिक्स करके हमें क्या प्रोड्यूस कर देती है? carbohydrate glucose, right. It convert into this and the process is known as, क्या बोलते हैं उसको? photosynthesis. Here we studied that CO2 plus H2O, they both combine and then with the help of light and one more thing it was written, क्या नाम था उसका? chlorophyll. क्या नाम था यहाँ पर? chlorophyll. And that convert C6H12O6 which is called glucose. क्या बोलते हैं उसको? ग्लूकोज. Here it convert this into glucose plus H2O plus water, right. O2, H2O plus O2. O2 is oxygen, right. It converts inorganic material into organic, right. It's an important process in nature for providing food supply to the biological world. खाना जो है वो सबको चाहिए होता है, ठीक है. और ये अपने आप क्या खाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है. और इवॉल्व क्या करते हैं? ऑक्सीजन, राइट. द ओवरऑल रिएक्शन इज दिस, दैट CO2 plus H2O gives us, right. Now here this excess glucose is stored in the form of, किसकी फॉर्म में स्टोर होता है? स्टार्च की फॉर्म में, राइट. सो हियर प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, CO2 and H2O converted, right. Here we can see it's here in the, इट्स नॉट अकर इन द सेल ऑफ द ऑर्गन. सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि ऐसा नहीं होता कि जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है इट नॉट अकर इन द सेल. इट अकर ओनली इन दो सेल. हर सेल में अकर नहीं करता. ये उन सेल में अकर करता है जहां पर क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है. वेयर क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट, ठीक है.
Chloroplasts are not found in the upper or lower epidermis of green leaf, right? It's not present in the upper or lower epidermis of a leaf. They occur in, कहाँ पर occur करते हैं ये? Mesophyll cell, right? Right? That occupy the space between. ये कहाँ पे present होती है? In between upper and lower epidermis, right? So let's understand this. Here CO2 that enters, carbon dioxide enter into leaf through the tiny spore. एक छोटा सा पोर होते हैं इसके अंदर, ठीक है, राइट, ऑन द सरफेस ऑफ द लीफ, जिसको क्या बोलते हैं? स्टोमेटा बोलते हैं. हियर व्हाट वी ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्व करते हैं कि जितना भी यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड होगा वो एंटर करेगा इस ओपनिंग पोर से और इस स्टोमेटा के अंदर चला जाता है, ठीक है. हेयर यू कैन से वाटर इज टेकन अप फ्रॉम द सॉइल. पानी जो होता है वो कहाँ से आता है? सॉइल से आता है. तो हियर यू कैन सी, मैंने अभी बताया आपको कि जो क्लोरोप्लास्ट होता है ये अपर में और लोअर में नहीं प्रेजेंट होता, ये मेसोफिल में प्रेजेंट होता है. वो जो स्पेस जो किसमें होता है? अपर और लोअर एपिडर्मिस के बीच में होता है. सो मेसोफिल इज डिफरेंशिएटेड इनटू पैलिसेड्स एंड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, राइट. Right? The green cell of mesophils are living fluorenchymatous cells which possess a large number of chloroplasts. इनके अंदर बहुत सारे क्या प्रेजेंट होते हैं? क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं. The chloroplasts of higher plants are discoid, ellipsoidal और biconvex lens होते हैं, right? They can be easily seen under the high power of light microscope. But the finer detail of chloroplasts can be observed under microscope only. ठीक है, तो हमने क्या देखा यहाँ पर कि H2O यहाँ से गया और CO2 स्टोमेटा से एंटर करता है, राइट. यहाँ से हम ये देखते हैं कि ये जो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, ये जो क्लोरोफिल यहाँ से क्या करता है? क्लोरोफिल प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट एब्जॉर्ब द रेडिएंट एनर्जी फ्रॉम द सनलाइट. और ये क्या सनलाइट को अब्जॉर्ब करना शुरू करता है, राइट. व्हेन द लाइट एनर्जी एंटर, जैसी लाइट एनर्जी एंटर करती है वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट हो जाता है. किसमें स्प्लिट हो जाता है? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, राइट. हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. सो हियर you see this H2O breaks and it forms in the this release the energy and it is always in the form of ATP. किसमें होता है ये? ATP, right. I want to tell this that जो photosynthesis का process होता है it include the light phase and dark phase also, right, जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है, ठीक है. There are the green colored ग्रेना जो होती हैं वो इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं. जो लाइट फेज होता है, कई बार आपको पेपर में दिखाई देगा ये क्वेश्चन, तो लाइट फेज जो होता है वो ग्रेना में होता है और जो डार्क फेज होता है दैट इज इन स्ट्रोमा. इसमें होता है ये हमारे स्ट्रोमा में, प्लांट के स्ट्रोमा में होता है, ठीक है. तो हमने कहा कि जो ग्रीन प्लांट होगा दे टेक CO2, वो क्या लेंगे? CO2 को लेंगे, वाटर को लेंगे, कहाँ से? सराउंडिंग से, और कन्वर्ट कर देंगे. किस में कन्वर्ट कर देंगे इसको? कार्बोहाइड्रेट्स में, राइट. कार्बोहाइड्रेट्स में, राइट, ठीक है. thus हम कहेंगे दिस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर दे आर द रॉ मटेरियल्स. ये क्या कंसिडर होंगे यहाँ पर? रॉ मटेरियल, ठीक है. नाउ द रिलीज एनर्जी इट इज इन द फॉर्म ऑफ ATP. हमने कहा कि जितना भी एनर्जी होगी वो किसकी फॉर्म में होगी? ATP की फॉर्म में होगी, जिसको हम बोलते हैं एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, राइट. आफ्टर दिस वी से दिस इज ATP. This energy is used to convert carbon dioxide and hydrogen into carbohydrate. जिस कार्बोहाइड्रेट को हमने क्या नाम दिया? ग्लूकोज. ये ग्लूकोज क्या होता है? C6H12O6, right. So here this forms C6H12O6 which is glucose. And glucose we use as a food. जो हम क्या करते हैं? खाने के उसमें यूज करते हैं. जितना भी बचा हुआ O2 होता है, H2O होता है, वो बाहर चला जाता है. Now see the reaction of photosynthesis. We say 6CO2 plus 12H2O converts in the presence of sunlight and chlorophyll that convert carbon dioxide and water into glucose plus water and oxygen, right. The complete जो प्रोसेस है उसको देख लेते हैं एक बार. जो क्लोरोप्लास्ट होता है, जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, ये कहाँ पर होता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है, ठीक है. हमने कहा यहाँ से CO2 और H2O निकलते हैं. रॉ मटेरियल जो भी होता है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें? हमारे
C6H12O6 में द फर्स्ट स्टेप ऑफ प्रोसेस इनिशिएट व्हेन द लाइट फॉल ऑन द ग्रीन लीफ। जैसे ही लाइट किसके ऊपर, ग्रीन लीफ के ऊपर आती है, द पिगमेंट क्लोरोफिल प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट एब्जॉर्ब द लाइट, इसको एब्जॉर्ब करती है। ये क्रिएट करती है कुछ कंडीशंस जिससे जो वाटर होता है H2O होता है वो ब्रेक हो जाता है, और ब्रेक होकर क्या देता है हमारे को, हाइड्रोजन प्रोटॉन्स देता है और साथ में इलेक्ट्रॉन्स देता है, और कुछ हमें क्या देता है, ऑक्सीजन। ठीक है, और ये क्या कहलाते हैं, फोटोलाइसिस कहलाता है। क्या कहलाता है, फोटोलाइसिस। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, इट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ फोटोसिंथेसिस इन विच द मोलिक्यूलर O2 is involved. This O2 goes into atmosphere. ये O2 कहाँ चली जाती है, एटमोस्फेयर में चली जाती है। इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन जो रिलीज होते हैं, या अभी हमने कहा हमने H और O रिलीज होगा, इट इज रिलीज्ड बाय द फोटोलाइसिस ऑफ वाटर एंड आर यूज्ड अप इन द प्रोडक्शन ऑफ पावर, है ना। किसकी फॉर्म में यूज होता है, पावर की फॉर्म में होता है। इट इज यूज इन द फॉर्म ऑफ NADPH, और साथ में क्या होता है हमारा ATP, राइट। वी आर सेइंग इट इज adenosine triphosphate. This complete process in which the light energy in the photolysis of water, evolution of oxygen and synthesis of this power, right, it is called light reaction. इसको क्या बोलते हैं, light reaction कहते हैं। ठीक है, this step only occur in the granum part. ये कहाँ पर present होता है, हमारा granum part में होता है, right. The assimilatory power generated in the light reaction of photosynthesis is used up in the next step. कौन सा स्टेप होता है, जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर की यूटिलाइज होती है इन द प्रोडक्शन ऑफ, हमने कहा ग्लूकोज, C6H12 और O6, राइट। दिस स्टेप इज डिस्कवर्ड बाय कैल्विन, बेंसन एंड बेसम, राइट। इट इज हियर occur in stroma part of chlorophyll. It is occur in stroma part of chlorophyll. That totally enzymatic process and has a term as dark reaction. इस reaction को क्या नाम दिया जाता है, dark reaction. The biochemical reaction occurring one after the other in the form of cycle which utilize, किसको utilize कर रहा है, assimilatory power of reaction, convert CO2 into 6, इट इज कॉल्ड डार्क रिएक्शन। जिसमें हम कह रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड इसमें कन्वर्ट होता है, उसको बोलते हैं डार्क रिएक्शन। जिसमें हमने कहा ये रिलीज करता है ऑक्सीजन, उसको बोलते हैं लाइट रिएक्शन। ठीक है, तो हियर वी ऑब्जर्व दीज ऑल थिंग्स। हमने क्या देखा, प्रोडक्शन हुआ किसका, ग्लूकोज का, राइट। सो हियर द स्टेप ऑफ फोटोसिंथेसिस डू नॉट टेक प्लेस वन आफ्टर द अदर इमीडिएटली। हियर इफ यू सी डेजर्ट प्लांट टेक इन CO2 एट नाइट, कहाँ पर, रात को CO2 कार्बन डाइऑक्साइड अब्सॉर्ब करता है, राइट। हियर CO2 that absorbs and then convert into intermediate product. ये क्या बनाता है, intermediate product. Here at the daytime, during the daytime, the intermediate product is acted upon by the energy absorbed by the chlorophyll and converted them into glucose. और बाद में वो क्या करता है, उसको convert कर देता है किसमें, glucose में, right? Okay, so this is all about. You need to revise it. Thank you. Bye bye.